हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक रिलेटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन which you can see on the screen dear. An infant is born with a bilateral cleft palate. So the disease we are discussing over here is related to the cleft palate. Plan for made to bring reconstructive surgery immediately. Okay, so what nursing intervention should be included to promote the parent infant attachment? ऐसी क्या nursing intervention हमें करनी पड़ेगी जिससे कि parent infant attachment increase होगा? या तो demonstrating a positive acceptance, या फिर placing the infant in a nursery away from the view of the general public, या तो बेबी को हम जनरल पब्लिक से अलग रखेंगे, एक्सप्लेनिंग द पेरेंट दैट द इन्फेंट विल लुक नॉर्मल, बेबी नॉर्मल दिखेगा आफ्टर सर्जरी, या एंकरेजिंग द पेरेंट टू लिमिट द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेंट। तो हम जब तक बेबी की सर्जरी नहीं होगी तब तक मदर को बेबी से नहीं मिलाएंगे। तो डियर द आंसर फॉर दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिंग अ पॉजिटिव एक्सेप्टेंस of the infant. So it's very important that an attitude of acceptance has to be shown. We should not be judgmental. हमें judgmental नहीं रहना है. So as per the priority based question and answering, you have to answer dear. Okay, the answer is your one. So let's move to the next question. So next question क्या कहता है? Which behavior indicates to a nurse that a new mother is in the taking hold phase? That means now she is ready to uh, do that role. वो जो role है उसको motherhood का she is ready. So let us see what are the various options. Okay, whether calling the baby by the name, talking about the labor and the pain. उस टाइम पे लेबर और पेन के बारे में बात करने से ज्यादा टेकिंग होल्ड फेस का पता चलता है, या टचिंग द बेबी विथ हर फिंगर्स or being involved with her need to eat and sleep. The answer is calling the baby by the name. जब एक माँ बेबी को नाम से बुलाती है वो taking whole face दिखाता है कि now she is completely ready to accept that face dear. तो it is the answer is 2. Let's move to the next question. What is the most important factor for a nurse to consider when selecting nursing measures to help parents and child relationship during immediate postpartum? तो postpartum period में dear ऐसा क्या दिखाता है कि which helps to child parent and child relationship? So physical status of the infant, duration, difficulty of the labor, anesthesia during the labor, और health and emotional status during the pregnancy. तो इसमें से कौन सा फैक्टर है okay for a nurse to consider as selecting nursing measures? For example, उस समय हमें क्या करना चाहिए dear? तो the foremost and the answer for this question dear is the physical status of the infant is foremost important. Okay, next. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पायलट प्रोग्राम, सी व्हाट इज पायलट? आपने अगर रिसर्च पढ़ी होगी नर्सिंग रिसर्च में, पायलट एक स्मॉल स्केल की स्टडी होती है। ओके, सो जब पायलट इज अ स्मॉल स्केल स्टडी, बिफोर वी आर गोना प्रोसीड फॉर अ लार्ज स्केल स्टडी, हम पायलट स्टडी करते हैं ताकि देखते हैं कि हमारी रिसर्च की फिजिबिलिटी है कि नहीं, दैट इज नोन एज अ पायलट। तो पायलट प्रोग्राम इज बीइंग डेवलप okay to assist new mothers who is at a risk of mother infant who is at risk of mother infant uh, problems and all. Which mother situation would make her a candidate for the program? तो ऐसा कौन सा सिचुएशन है कि अगर मैं एक पायलट प्रोग्राम करूंगी कि व्हाट इज द रिस्क ऑफ द मदर एंड इन्फेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो इसमें से क्या होगा, कौन सी क्लाइंट होगी जो मेरे स्टडी में इंक्लूडेड होगी? द प्रेगनेंसी वॉज नॉट प्लान, इफ अ मदर्स प्रेगनेंसी वॉज नॉट प्लान, क्या उससे कोई रिलेशन होगा क्या चाइल्ड और मदर की प्रॉब्लम रिलेशनशिप में डियर? या देर आर नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट द बर्थिंग प्रोसेस, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी एलिशिएटेड एम्बिवेलेंट फीलिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो सकता है डियर। बात कीजिए प्रेगनेंसी डियर, प्रेगनेंसी में एम्बिवेलेंट फीलिंग होता है। एम्बिवेलेंट का मीनिंग क्या होता है? दिस इज साइकेट्री वर्ड वेयर द पेशेंट इज नॉट एबल टू डिसाइड उसे क्या डिसीजन लेना है, शी इज कंफ्यूज बिटवीन द टू थिंग, दैट इज दिस फीलिंग इज नोन एज अ एम्बिवेलेंट फीलिंग। एग्जैक्टली, वो से बोलते हैं हम ambivalent feeling. Okay, so the answer for this is here
Number fourth option is there was a preference for one sex, but some she gave birth to another baby. ओके, तो इसमें क्या हुआ कि जो बेबी बॉर्न होगा उससे अटैचमेंट या उसमें प्रॉब्लम देगी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मदर is concerned that her newborns may be exposed to communicable diseases. What does when she goes to home, when teaching the mother ways to decrease the risk of infection, what type of immunity, क्या टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्लासेंटा से जाती है? तो हमारे हमने हमारे बीएससी नर्सिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने सब्जेक्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो जो प्लासेंटा से जाती है एंटीबॉडीज, वो कौन सी इम्यूनिटी है? डी उस देखो, एक तो वो प्लासेंटा है तो दैट मीन्स इट्स अ नेचुरल, ओके। बट वो डियर पैसिव होती है, इट इज नॉट एक्टिव। तो लेट अस हैव अ recap. So immunity is divided into various classifications. Dear, we are having an active immunity, okay, and then we have a passive immunity. Active immunity develops होता है dear when someone is exposed like that. We are having a natural immunity, okay, किसी फॉरेन बॉडी से एक पेशेंट जो हम लोग एक्सपोज होते हैं डिसीज से, जो इम्यूनिटी बनती, दैट इज अ नेचुरल एंड एक्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी। नेचुरल और एक्टिव। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कौन सी एक्टिव इम्यूनिटी होती है? जो भी इम्यूनाइजेशन मिलते हैं, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी आर हैविंग पैसिव। ठीक है, पैसिवली वो रेडीमेड आपको मिली है लाइक दैट। तो फॉर एग्जांपल नेचुरल पैसिव, जो अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पैसिव था, उसका आंसर पैसिव। ओके, दैट वाज नेचुरल इन नेचर एंड पैसिव। तो जो भी एंटीबॉडीज ट्रांसफर होते हैं मदर्स टू द फीटस, है ना, प्लासेंटा के द्वारा, तो वो होते हैं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एंड ऑल। ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट्स एवरीथिंग, है ना, वो होते हैं हमारे आर्टिफिशियल। नाउ यू आर क्लियर विद द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। नेक्स्ट मूव टू द फर्दर क्वेश्चन। A client in the rooming in with her newborn, a mother observed the infant lying quietly in the basement. तो क्या होता है कि एक नर्स ऑब्जर्व करे इन्फेंट को शांति से लेटा हुआ है, अब बच्चे की आंखें वाइड ओपन है। विच एक्शन शुड ए नर्स टेक इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेंट्स बिहेवियर? ऐसा क्या एक्शन लेना है? क्या वहां की लाइट इंक्रीज करनी है, रैप एंड टर्न द इन्फेंट करना है, encourage द मदर टू टॉक टू द हर बेबी, और बिगिंस द फिजिकल एंड बिहेवियर असेसमेंट एंड ऑल? तो बेटा इसका आंसर होगा encourage the mother to talk to the baby. वो बच्चा इससे बात करेगी, then the baby will gonna be active. Next, move to the further question. Now, this question is very important. Okay, तो ये डियर है एबगार स्कोर से रिलेटेड। ठीक है, देखिए आपका जो एबगार स्कोर है डियर, जब बेबी बॉर्न होता है, एक 1 मिनट में करते हैं और एक 5 मिनट में करते हैं। इज दैट क्लियर? जब भी बेबी बॉर्न होता है, एबगार स्कोर करते हैं बेबी को हम लेबर रूम में, वी आर टेकिंग द बेबी अंडर this radiant warmer, okay, we're doing the assessment, we're doing abgas score, we will gonna give the baby vitamin K if there is a need for suctioning करेंगे, if there is a need for oxygen देंगे। तो let us see what is the scenario in this question dear। इसमें क्या सिनेरियो है कि जो बेबी की जो क्राई है वो बहुत ही लस्टी है। द हार्ट रेट इज अराउंड 150 एंड ऑल। एक्सक्रीमेटी बहुत ही फ्लेक्स्ड है, मीन्स क्लोज टाइप है। एंड द जब बॉटम्स देखा जाता है, फीट इज ब्लूइश डिस्कलरेशन। ठीक है, तो आपका स्कोर कितना है? आज इसका आंसर है डियर 9 है। अब हम इसको समझते हैं इसका आंसर 9 कैसे है। लेट अस स्टडी। बिफोर दैट यू शुड नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबगार। ठीक है, एबगार के बारे में आपको पता होना चाहिए। एबगार अपीयरेंस, पल्स, ग्रीवेंस। ठीक है, ये होता है एबगार। अपीयरेंस मतलब बेबी दिखता कैसा है, बेबी दिखता कैसा है डियर? क्या बेबी पूरा का पूरा ब्लू कलर दिखता है? ओके, ओके, अगर जस्ट इमेजिन द मैक्सिमम स्कोर फॉर ईच सेशन वी विल गोना गिव इट अ 2 मार्क्स, और सबसे लोएस्ट मार्क्स होते हैं 0। तो अगर बेबी बहुत बढ़िया पिंक कलर का दिख रहा है तो वी विल गोना असाइन द बेबी 2 मार्क्स इन अपीयरेंस। अगर बेबी की एक्सट्रीमिटीज केवल ब्लू है और एब्डोमेन एरिया इज पिंक है, देन द बेबी विल गोना गिव मार्क्स 1। और बेबी पूरा ही ब्लू दिख रहा है, साइनोस दिख रहा है, दैट इज द बेबी से साइन 0। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इस केस में हम वापस चलते हैं। अब आप लोग बताइए, सोचिए कि इसमें क्या है। ओके, सो नाउ यू कैन सी
बट द बॉटम ऑफ द फीट हैव अ मार्क्ड ब्लू। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि बेबी का जो बॉटम है वो ब्लू कलर का है। तो अल्टीमेटली एज पर दिस आवर क्वेश्चन, इसमें हमने बेबी को कितना मार्क्स दिया है? 1 मार्क्स दिया है। ठीक है, 1 मार्क्स दिया है हमने। ठीक है, ओके। नो नेक्स्ट पल्स। अब पल्स अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, पल्स देखोगे तो या तो 0 मार्क्स उससे मिलता है जिसका हार्ट रेट नहीं है। जिस बेबी का हार्ट रेट लेस देन 1 है उसको 1 मार्क्स देंगे, और जिसका मोर देन 100 है वो बेबी को असाइन करें। अब हमारे केस में था 150 था, तो वी विल गोना असाइन द बेबी विद 2 मार्क्स। ओके, 2 मार्क्स। अब ग्रीमेंस, ग्रीमेंस मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस। क्या हमें स्टिमुलेशन देना पड़ रहा है तब बेबी कुछ वो एक्टिविटी ये कुछ कर रहा है, लाइक दैट, दैट इज नोन एज ग्रीमेंस। तो बेबी बिल्कुल नो रिस्पॉन्स है तो 0 मार्क्स। बच्चा रो रहा है, बहुत ही वीक क्राई है, तो हम उसे 1 मार्क्स। बेबी बहुत अच्छा एक्टिव क्राई कर रहा है। ठीक है, तो हमारे जो केस में हमने देखा था, लेट्स मूव बैक टू दिस थिंग। तो बेबी बहुत ही एक्टिव क्राई कर रहा था डियर। ठीक है, क्राई इज लस्टी, मतलब हम इसमें देंगे ऑब्वियसली 2 मार्क्स विल गोना असाइन बिकॉज द बेबी वाज क्राइंग। एक्टिविटी की बात की, नो मूवमेंट है बेबी में। ओके, आर्म्स एंड लेग्स आर फ्लेक्स्ड, मुड़े हुए हाथ पैर हैं। ठीक है, एंड और फिर लास्ट वाला एक्टिव मूवमेंट से बेबी बहुत अच्छे मूव कर रहा है। अब बात करते हैं आर फॉर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो डी रेस्पिरेशन एपनिक है। ओके, वेरी एपनिक। बेबी का इरेगुलर रेस्पिरेशन है, अब बहुत अच्छा स्ट्रांगली क्राई कर रहा है, तो ठीक है, तो दैट इज रेस्पिरेशन एज अ होल। यहाँ पे डियर हमारे सिनेरियो में वी हैव गिवन बेबी 1 मार्क्स। बाकी बेबी का हार्ट रेट 150 था, बेबी क्राई कर रहा था, बेबी वॉज लाइक यू कैन से इट वॉज एक्टिव मूवमेंट्स वर देयर एंड स्ट्रांगली क्राई करता रेस्पिरेशन में। तो इसमें टोटल हमारा 9 मार्क्स, तो दैट विल बी द आंसर। तो हमेशा याद रखिएगा इन योर एग्जाम्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन अबकार स्कोर से तो आता ही आता है। ठीक है, तो आप में ये गलती नहीं करनी। तो अब बात आती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जो मार्किंग आपको दी होगी तो यू हैव टू क्लासीफाई। तो एक बेबी का 7 to 10 अगर स्कोर एबकार स्कोर होता है उसे नॉर्मल मानते हैं डियर, और एक बेबी का 4 to 6 होता है दैट इज मॉडरेट डिप्रेस। बेबी इज मॉडरेटली डिप्रेस। 0 to 3 है डियर, 0 to 3 है, दैट मीन्स द बेबी इज सीवियरली डिप्रेस। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for the classification. Is that clear? Now you're clear. Normal, moderately depressed, and very depressed. Okay, nice. Let's move to the next question. What is a nurse primary critical observation when performing an assessment for determining एबगास को? सबसे ज्यादा फोमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दियर हार्ट रेट जब भी एबगास को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जब हम बेबी को एसेस कर रहे हैं 3 मंथ्स आफ्टर द बर्थ इनटू कंसिडरेशन द हार्ट रेट ऑफ अ हेल्दी अलर्ट न्यूबॉर्न। एक अच्छे सा हार्ट रेट किसके कितना होता है? 120 to 160 बेबी का हार्ट रेट होता है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नॉइजी रूम है, स्लीपिंग न्यूबॉर्न इनिशिएट अ स्टार्टल एंड अ रैपिड मूवमेंट बट सून गोज टू अ स्लीप। बच्चा एक रूम में था, अचानक से स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है उसमें, वो सो जाता है। तो इसमें हमें एज ए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देखना है? एक्सेप्ट द इवेंट, बच्चा ऐसा करता है, इट्स नॉट एबनॉर्मल। ओके, नॉर्मल नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Neonates have difficulty maintaining their body temperature. However, they have several mechanisms to help them maintain it. Which one should a nurse consider when caring a newborn? तो अब बताइए कि बेबी में जब टेम्परेचर मेंटेन करता है, कौन सी मैकेनिज्म हेल्प करती है बेबी को टेम्परेचर मेंटेन करने के? आपको क्या लगता है इसमें क्या आंसर होगा डियर? हमेशा याद रखना न्यूबॉर्न्स में ब्राउन फैट्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर इज योर नंबर 3, ब्राउन फैट्स है डियर। जो बॉडी फ्लेक्स होती है वो भी हेल्प करती है, प्लस पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से इट हेल्प्स। नाउ वी विल हैव फिजियोलॉजी। तो दिस इज द फैट डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी बेबी न्यूबॉर्न, जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यू कैन सी दीज आर द एरिया। Okay, and the baby usually lost its heat by the movement of convection, by the movement of radiation, conduction। जब भी बेबी किसी ऑब्जेक्ट से टच होता है तो हीट ट्रांसफर होता है, तो उससे कंडक्शन कहते हैं हम। कन्वेक्शन, अगर बेबी का कोई बेसनेट, कोई एनआईसी में शायद से विंडो है, वहां से एयर आ रही है, दरवाजे से एयर आ रही है,
उससे हीट लॉस हो रहा है, दैट इज नोन एज द कन्वेक्शन। दिस इज द रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। जब बेबी बॉर्न होता है तो हो सकता है हमने उसे अच्छे से ड्राई नहीं किया हो, तो इवेपोरेटरी लॉस होगा, तो उससे भी टेम्परेचर वेरी करेगा। तो दीज आर द वेरियस मेथड्स फ्रॉम विच द बेबी कैन लूज द हीट। अब बात करते हैं एज पर द फिजियोलॉजी कि ऐसा क्या होता है ड्यूरिंग द बेबी व्हेन द बेबी इज having this kind of temperature. Now just imagine this is a baby. So whenever the baby is having a cold की वजह से बॉडी में इंक्रीज ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है कि हाँ बॉडी में और ऑक्सीजन चाहिए उसको ओवरलैप करने के लिए, डियर उसको करने के लिए बेबी का रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है। तो बेबी जल्दी 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 सांस लेना शुरू करता है। जैसे ही जल्दी सांस लेता है तो पल्मोनरीज में वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, डियर वैसो कंस्ट्रिक्शन। जैसे कंस्ट्रिक्शन हो जाता है तो O2 अपटिक बाय द लंग्स। अब सोचिए पल्मोनरी वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो अगर वहाँ वैसो कंस्ट्रिक्शन लंग्स में यहाँ पे हो रही है डियर, तो O2 अपटेक कम हो जाता है। अल्टीमेटली बेबी का जो पेरिफेरी से हाथ पैर है वहां भी वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। एग्जैक्टली अल्टीमेटली जो टिश्यूज है देयर इज अ डिक्रीज ऑक्सीजन इन द टिश्यू आल्सो। एग्जैक्टली अब उसके वजह से अल्टीमेटली बेबी के पास एरोबिक की जगह एनोरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, यू कैन से एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। तो उसके वजह से डियर क्या होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, पीसीओ2, जो पीसीओ2 की मात्रा कम हो जाती है। ओके, और एस पीएच वैल्यू डिक्रीज। पीएच वैल्यू जितना डिक्रीज होता है कोई भी बॉडी में डियर, तो बेटा उतना ही पीएच उसका वैल्यू मतलब एसिडिक इन नेचर हो जाता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दिस इज द स्मॉल पैथोफिजियोलॉजी व्हिच यू शुड बी knowing it. Let's see. Nurses assessing a newborn respiration. What clinical finding indicate that respiration are within the expected range? So हमेशा याद रखना डियर, इसका आंसर है फोर्थ। बेबी का एक नॉर्मल रेस्पिरेशन 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। ओके, यू कैन आल्सो राइट एज फोर, ठीक है। तो वो बहुत इरेगुलर होता है, एब्डोमेन होता है। कभी भी बेबी थोरैसिक रेस्पिरेशन नहीं लेता, वो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन होता है और वो इरेगुलर होता है, ठीक है, विच इज अ नॉर्म। नेक्स्ट, at the beginning of the first formula feeding, a newborn begins to cough and choke. कफ हो रही है और चोकिंग भी हो रही है, लिप्स भी ब्लू दिख रही है। व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन? तो ब्लू दिख रही है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हो सकता है चोकिंग है कि नहीं। तो हम सक्शन एंड देन ऑक्सीजन करेंगे। पहले सक्शन आउट करेंगे, क्या कुछ गले में फंसा तो नहीं है बेबी को, फिर हम ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, तो दिस इज द वेरी वेरी गुड, दिस इज द आंसर, सक्शन एंड देन ऑक्सीजनेशन। लेट्स मूव। नाउ आई वांट टू डिस्कस विथ यू अबाउट द वेरियस रेंजेस। एक बेबी को हम न्यूनेट कब कहते हैं? क्या आपको पता है न्यूनेट किसे कहते हैं? 28 डेज, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल 28 डेज को हम न्यूनेट्स कहते हैं। इन्फेंट्स 1 साल तक के बच्चे को बोलते हैं, और चिल्ड्रन अबव दैट एंड एडल्ट्स। ओके, नाउ द न्यूनेस का बेटा सक्शन जो प्रेशर है, ये सक्शन प्रेशर जब सक्शनिंग करते हैं, ठीक है, वो 60 to 80। दिस एरिया कैन बी आस्क्ड इन योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मीन्स इन योर एग्जाम। इन्फेंट्स में 80 to 100 रखना है। इन्फेंट्स मतलब 1 साल के बच्चे में, एंड चिल्ड्रन 100 to 120, एंड एडल्ट में 100 to 150 में ही आपको रखना है सक्शन प्रेशर। हमेशा याद रखिए जब सक्शन करते हैं तो मन में काउंट करते हैं हम लोग। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी यूज टू काउंट एज 10 9 लाइक दैट एट टिल 10 सेकेंड्स तक। कितने 10 सेकेंड्स तक करते हैं। तब बात करते हैं कि सक्शन जब आप करते हैं 10 सेकेंड्स के लिए ही करते हैं, और कब स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सक्शन कैथेटर एज सून एज दिस एरिया इज नोन एज ए कैराइना। कैराइना को टच करने के बाद तुरंत वी हैव टू टेक बैक द सक्शन फॉर 1 to 2 centimeter, एंड देन वी हैव टू अप्लाई द सक्शन एंड ऑन। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। ओके, ओके, so whenever we fill the carina, हमें थोड़ा सा suction catheter above ले जाना है, and then we have to apply the suction, we have to close the suction catheter, and then in the circular manner we have to release it. Okay, next question. At 10 hours of the age of a newborn, oral cavity is filled with the mucus and cyanosis develop. What should a nurse do first? साइनोसिस दोबारा होता है सक्शन, तो इसका भी आंसर सक्शन होगा। विच बिहेवियर शुड ए नर्स आइडेंटिफाई एज अ मोरो रिफ्लेक्स? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन में ये मोरो रिफ्लेक्स है? मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? जब भी हम बेबी को अचानक से बैक साइड
यूज टू लिव, बेबी एकदम डर के अपने हाथ सी शेप में करता है। तो एक्चुअली क्या होता है उसमें, चलो देखते हैं। तो एबडक्शन होता है एंड देन एडक्शन। हमेशा याद रखिए व्हाट इज, हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज एडक्शन एंड एबडक्शन। जब भी बॉडी से फार अवे जा रहे, दैट इज विच इज नॉट गेटिंग एडेड अप, दैट वर्ड इज नोन एज एबडक्शन। एबडक्शन जब कोई चीज बॉडी की तरफ आ रही, ऐड हो रही, जैसे ऐड यूज है, दैट इज नोन एज एडक्शन। तो बेबी क्या है, पहले एबडक्शन करता है फिर एडक्शन करता है। तो ये एक नॉर्मल, ये एक है हमारा नॉर्मल दिस मोरो रिफ्लेक्स में आप देखेंगे। ठीक है, और मोरो रिफ्लेक्स की जब बात की जाए तो ये कब डिसअपियर होता है डियर, इट्स डिसअपियर्स अराउंड द 6 मंथ्स, ओके। 2 to 6 months में ये होता है। यस, दिस इज द मोर एबडक्शन फिर एंडक्शन, एंड इट्स फॉर्मिंग, द फिंगर्स आर फॉर्मिंग सी शेप काइंड ऑफ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 6 months में ये गायब हो जाता है। गुड। ओहो, इसलिए तो आंसर पहले पता चल गया। सो अ न्यू बॉर्न हैज अ स्मॉल एंड whitest pinpoint spot over the nose. What are the cause of the retained subcutaneous secretions? तो ऐसे आप, एक आपको पिक्चर दी रहेगी और पूछा जाएगा कि ऐसे दाने रहते हैं नोज पे, वो क्या चीज, उसको बोलते हैं हम लोग मीलिया। यस, मीलिया बोलते हैं। द मीलिया लुक लाइक दिस। अब बात आ रही है मंगोलियन स्पॉट क्या होता है या लैनुगो क्या होता है। मंगोलियन स्पॉट इज अ बर्थ मार्क होता है। यूजली विल गोना सी इन योर द बेबी बैक साइड, ओके। उस एरिया में ही ज्यादा ही आप फाइंड करेंगे। ओके, so this was a total question of pediatrics which I have discussed today. I hope so you like this video. Don't forget to like my video, dear. Thank you so much for listening.